students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, organizing files and folders. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to manage files and folders using Windows 10, create a folder, rename, delete and restore a file and folder. Warm up. Reena wants to organize the things in the proper storage. Help her by matching the objects with the appropriate storage. Reena जो है अपनी चीज़ों को organize करना चाहती है proper storage में, तो आपने इसकी help करनी है. Object को match करना है उनके appropriate storage के साथ, right? Hi friends, let's learn how to keep our data in files and folders on computers. तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने data को files, folders में रख सकते हैं computer के, okay? We make files and folders which makes it easier for us to remember where we have stored our work. Let us learn how to manage files and folders using Windows 10. तो देखिए हम files and folders बनाते हैं जिससे कि हमें ये remember करना याद रहता है कि हम कहाँ पे हमने अपना वर्क को स्टोर किया हुआ था. ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम अपनी फाइल को मैनेज करते हैं, फोल्डर्स को मैनेज करते हैं विंडोज 10 का यूज़ करते हुए. लेट्स लर्न एट्रीब्यूट्स ऑफ विंडोज 10. In Windows 10, multiple users can work on one computer system at the same time. The search tool of Windows 10 is called Cortana, which lets us search for any information on the system or on the internet directly. It also provides a feature of downloading free and paid apps from an application called the Microsoft Store. We can open numerous desktops simultaneously by using the Task View button. देखिए विंडोज 10 में मल्टीपल यूजर्स जो है ना एक कंप्यूटर सिस्टम में सेम टाइम पे वर्क कर सकते हैं. और इसमें एक आपका सर्च टूल है कॉर्टना, जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं या तो सिस्टम पे या फिर इंटरनेट पे डायरेक्टली. ओके, इसके अलावा आप फ्री या पेड ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं. एक एप्लीकेशन है आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और हम न्यूमरस डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग द टास्क की बटन. ओके, the snap feature allows us to drag and drop a window to a corner of the screen, thereby making space for the other application. It enables to start more than one program at a time. Snap feature क्या करता है कि आपको ये drag and drop का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं विंडो को टू अ कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. ओके, जिससे कि दूसरी एप्लीकेशन के लिए स्पेस बन जाएगा. एंड इट इनेबल्स टू स्टार्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम. और इसके अलावा एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, डू यू नो Cortana interacts naturally via talking or typing and provide relevant recommendations, quick access to information, better searches and important reminders. अच्छा, Cortana जो है वो naturally interact करता है टॉकिंग बोल के या टाइप करके या फिर रेलेवेंट जो रिकमेंडेशंस है ना उन्हें प्रोवाइड करता है. क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बेटर सर्चेज या इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स. ओके, हियर इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू, जिसका आंसर आप खुद से करेंगे. नाउ फाइल्स. A file is a collection of data or information. When you save your work in a program, it is saved as a file. Files are represented on computers by icons. The Windows 10 operating system allows us to generate many file types. The type of file can be recognized by its icon. अच्छा, फाइल क्या होती है आपकी? ये कलेक्शन है डेटा का या फिर इंफॉर्मेशन का. तो जब आप अपनी वर्क को सेव करते हैं ना प्रोग्राम में, तो ये एज अ फाइल आपकी सेव होती है. और ये आपकी कैसे, देखिए ये रिप्रेजेंट कैसे की जाती है कंप्यूटर में? बाय आइकन्स. ओके, जैसे कि देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं लाइक वर्ड फाइल, पावर पॉइंट फाइल, पिक्चर फाइल. ओके, तो टाइप ऑफ फाइल को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके आइकन को देख के. ओके, नाउ फोल्डर्स. अ फोल्डर सर्व्स एज स्टोरेज फॉर फाइल्स और अदर फोल्डर्स. A folder within a folder is called a subfolder. We can create any number of folders where each can hold any number of files and subfolders. अब फोल्डर क्या है आपका? ये आपका सर्व करता है एज अ स्टोरेज. जैसे आपके लिए स्टोरेज किसी चीज़, हम जैसे आइटम्स को हम स्टोर करते रहते हैं ना किसी स्टोरेज डिवाइस में या स्टोरेज प्लेस पे, तो ये फाइल्स और दूसरे फोल्डर्स के लिए स्टोरेज प्लेस की तरह काम करता है. फोल्डर के जो अंदर होता है वो आपका सब फोल्डर होता है. हम कितने ही सारे फोल्डर्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं, और वेयर ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स. तो देखिए जैसे आपके पास है पिक्चर फोल्डर, डेस्कटॉप फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर. ओके, क्रिएटिंग अ फोल्डर. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर. तो चलिए अब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं. कैसे फोल्डर को क्रिएट किया जाता है? स्टेप्स. गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर. राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक स्पेस. Select New, then Folder from the contextual menu. Windows will create the new folder at your current location.
एंटर योर डिजायर्ड फोल्डर नेम एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपको फोल्डर कैसे क्रिएट करना, सबसे पहले तो आपको लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, फिर आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक स्पेस पे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे न्यू एंड देन फोल्डर को, ओके। फिर जो है विंडोज जो है वो न्यू फोल्डर को क्रिएट करेगी आपकी करंट लोकेशन पे, फिर आप फोल्डर का नाम एंटर करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे एंटर की, और इस तरह से आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। शॉर्टकट की कॉम्बिनेशंस, अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है उसके लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है वो है आपका प्रेस करना है कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस एन की, राइट। फाइल एक्सप्लोरर विंडो, File Explorer window provides comprehensive details of the drives, files and folders that are present in our system. In this window we can also create, open, move or remove a folder. तो फाइल एक्सप्लोरर विंडो जो है इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी ड्राइव्स की, फाइल्स की, फोल्डर्स की जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, ओके। और इस विंडो में आप क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या फिर एक फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं, ओके। ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। Number 1, click on the start button. 2, click the file explorer. 3, the file explorer window will open. अच्छा, अब फाइल एक्सप्लोरर को आपको किस तरह से ओपन करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ओके। देन आप सिलेक्ट करेंगे फाइल एक्सप्लोरर को और आपका फाइल एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगी, ओके। शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन, ओके। विंडो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट की, वो है आपका, आपको करना है प्रेस विंडो प्लस ई की कॉम्बिनेशन, ओके। Opening a file and folder. Follow the given steps to open a file and a folder. Steps. Number 1, click on the start button. 2, open the file explorer window. 3, choose a folder or a file you want to open or click the folder icon on the taskbar in desktop view. अब आपको कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर विंडो को, फिर आप वो फोल्डर या फाइल को चूज करेंगे जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आप फोल्डर जो आइकन है ना आपके टास्क बार पे उसको क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, राइट। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टेक्चुअल शॉर्टकट एंड पॉपअप और पॉपअप मेन्यू is opened when we right click anywhere on the app. It provides options that can be accessed quickly. Let us know how to use the context menu. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका क्या होता है कि ये आपका ओपन होता है जब कभी भी हम ऐप पे राइट क्लिक करते हैं एनीवेयर, ओके। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, बाय यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अ फोल्डर कैन बी ओपन्ड. Follow the given steps to open a folder using the contacts menu. Steps. 1. Choose a folder you want to open. 2. Right click on it. 3. From the contacts menu, select the open option. 4. The desired folder will open. सबसे पहले आपने फोल्डर को चूज करना है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट्स मेन्यू में से आप सिलेक्ट करेंगे ओपन ऑप्शन को, तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, ओके। रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर. Have you ever given a name to someone and wanted to change the name later? Similarly, sometimes you may want to change the name of an existing folder or file. In doing so, renaming is required. Renaming is to change the existing name of the file or folder. देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को नाम देते हैं और हम सोचते हैं कि बाद में हम चाहते हैं किसी चेंज करना, तो सेम आपके फोल्डर के केस में भी होता है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर है या फाइल है, आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको रीनेमिंग करना पड़ता है जो एग्जिस्टिंग नेम है आपका फोल्डर या फाइल का, ओके। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. Steps. 1. Right click on the folder or file that you want to rename. 2. Click on the rename option from the context menu. 3. Type the new name for the file, folder or file. 3. Press enter. अब आपने क्या करना है, जिसको भी आप रीनेम करना चाहते हैं, ओके, जो एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर है, सबसे पहले आपकी फोल्डर या फाइल पे राइट क्लिक करना है जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं, फिर यहाँ से आपको रीनेम ऑप्शन मिलेगा, ओके, इस पर क्लिक करना है, फिर फोल्डर या फाइल का न्यू नेम टाइप करना है एंड देन एंटर की, ओके। शॉर्टकट कीज, प्रेस F2 टू रीनेम अ फोल्डर. देखिए शॉर्टकट की आपके पास है फोल्डर को रीनेम करने का, वो है F2, ओके। एंड यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपने खुद से करना है, ओके। डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर. There are some unused files and folders which you may want to delete.
Deleted files or folders will be sent to the recycle bin. Follow the given steps to delete an existing file or folder. अच्छा देखिए, कई बार ना कुछ अनयूज्ड फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं जो अननेसेसरी हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो हमें उनको डिलीट करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप्स. 1. Right click on the folder or file which you desire to delete. 2. Click on the deleted option from the context menu. अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी फाइल या फोल्डर का आपने डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका फाइल फोल्डर डिलीट हो जाएगा. ओके, एंड शॉर्टकट की क्या है, देखिए प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन, इससे आपका फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा. ओके, रीस्टोरिंग अ फाइल एंड फोल्डर. Sometimes you might unintentionally delete a file. To bring back the file from the recycle bin is called restoring. Follow the given steps to restore any file or folder. कई बार क्या होता है कि आप अननोविंगली कुछ फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसे वापस ब्रिंग बैक करना चाहते हैं, तो ये रिसाइकल बिन से उसको वापस लेके आना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है रीस्टोरिंग. तो देखिए रीस्टोरिंग कैसे करते हैं. स्टेप्स. Number 1. Double click on the recycle bin icon on the desktop. 2. The contents of the recycle bin get displayed in a new window. 3. Right click on the file or the folder you want to restore. 3. Click on the restore option from the context menu. 5. The file or folder will be restored to its original location. देखिए, आपको डबल क्लिक करना है रिसाइकिल बिन आइकन पे जो आपके डेस्कटॉप पे है. अब आपके देखिए जो कंटेंट्स होंगे ना रिसाइकिल बिन के, वो डिस्प्ले हो जाएंगे. फिर जो भी फाइल या फोल्डर को आप रीस्टोर करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे रीस्टोर ऑप्शन पे, और आपकी जो फाइल या फोल्डर है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस से रीस्टोर हो जाएंगे. राइट, लेट्स रिकॉल. In Windows 10, multiple users can work on one computer system at the same time. A file is a collection of data or information. A folder serves as storage for files or other folders. A folder within a folder is called a subfolder. A context menu provides options that can be accessed quickly. Renaming is to change the existing name of the file or folder. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.